योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राय। स्वामी Here, I welcome you all with a heart full of love to the lotus holy feet of Bhagwan Shri Yogi Ram Surat Kumar. We have amidst us Padma Shri Prahlad Singh Tiphania, a very renowned Kabir Doha singer, who not only sings so beautifully, but also carries the message of Kabir's songs. So it's going to be a feast, not only in Kabir songs, it will be a sadhana evening for all of us, those who listen to it intently. இப்போ சில வார்த்தைகள் தமிழில் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எதிர்பார்க்கல, யாருமே பிளான் பண்ணலை. இந்த ஒரு பெரிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பத்மஸ்ரீ பிரகலாத் சிங் டிபானியா நம்ம ஆசிரமத்துக்கு பகவான் முன்னாடி கபீருடைய பாடல்களை எல்லாம் பாடி அதை ஒரு பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபரிங்கை சமர்ப்பணம் பண்ண விரும்பினதால இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு ஒரு பெரிய இனிய இசை விருந்தாக அமையும். அது மட்டுமல்ல, கபீருடைய பாடல்கள்லாம் ரொம்ப பொருள் பொருந்தியவை. நம்ம அந்த பாடல்களை கேட்கும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தத்தை எல்லாம் நான் இங்கே தீபா கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஒரு பாடலுடைய அர்த்தத்தையும் இங்கிலீஷில் முதல்ல சொல்லிடணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லிடுவோன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதனால் அந்த அர்த்தத்தெல்லாம் நம்ம மனசில் வாங்கிட்டோம்னா ஒரு பெரிய விருந்தாக இருக்கும், பெரிய ஆத்ம லாபமாக இருக்கும். அது இவரை பற்றி இங்கிலீஷ்லேயும் தீபா சொல்லுவாங்க. இவர் உஜ்ஜயினி டிஸ்ட்ரிக்டில் மால்வா இங்கே அந்த ஒரு கிராமத்து இசையில் கபீருடைய சாங்ஸ்லாம் பாடப்படுறார். மால்வா ரத்னாங்கிற ஒரு பட்டம் எடுத்துருக்காங்க. சிரேஷ்ட கலா ஆச்சாரியா. मध्य प्रदेश का शिखर समन संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री also latest highest award for them. அதனால் எல்லாரும் மனம் பொருந்தி இந்த இசையை கேட்டு மகிழ்ந்து இந்த கருத்துக்களை உள்ளே வாங்கிக்கணும். பகவானுக்கு கபீருடைய பாடல்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். கபீருடைய பாடல்கள் அடிக்கடி அவர் கோட் பண்ணி சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு எங்களுக்கு. அதை இன்றைக்கி காலம்பர சத்சங்கத்தில் தமிழில் நான் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன். அதனால் திரும்ப அதை பற்றி சொல்லணுங்கிறது இல்லை. நம்ம இப்போ இது அவருடைய இசையை ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. ஆசிரம சார்பில் பகவானுடைய பிரசாதமாக அவருக்கு ஒரு மாலையை அணிவிக்க விரும்புகிறோம். I request you just take this prasad of Bhagwan. Yogi Ram Surat Kumar, Yogi Ram Surat Kumar, Yogi Ram Surat I
I request Deepa to introduce Padmashri Prahaladji to the audience in English. Good evening. Good evening, everybody. Can you hear me? So he's known as Prahaladji to all of us. He's from the Malwa region. He's known to us as Prahaladji. So we all call him Prahaladji. And he comes from this small village in Madhya Pradesh called Lonia Khedi. So he worked as a school teacher, and during his young days, there were these there were bhajan mandalis in his village where, they would sing after a hard day's work. So farmers, teachers, doctors, they were called Veds, the village Veds. They all joined together in the evening after 7 p.m. after a hard day's work, and they would sit under trees or in somebody's veranda of the house and start singing Kabir bhajans. So music is not inherited by him. So he would get very irritated, like he would not be able to sleep in the night because the bhajans would start only after 7 p.m. and it would go on till 10 p.m., 12 a.m. and 1 a.m. So he would get very irritated. So instead of that, what he decided one day that he will go and join these mandalis and then listen to them as to what they are screaming and shouting about. And finally, he heard the sound of this 5-stringed instrument. So this is called tambura. And he got so captivated by it, and he thought that he should learn how to play this. And when he began to play, one of the man in the mandali said, Arey, Sahib, teacher, teacher Sahib, master Sahib, it is not enough only if you play the tambura. You have to also learn to sing the bhajans. So that's how his journey began. He started singing, and then he was so captivated and he became so intense about it that he himself deeply soaked and engaged in all these bhajans, not only listening but also bringing in his own experience of life. And he got several awards after that. He's traveled across the world spreading the message of Kabir, of love, peace and harmony among different sects of the society. So thank you. We'll listen to him today. I'll try to give a gist of all bhajans. I don't want to interrupt in his flow. So if I feel that it's not necessary to talk, I'll just be quiet. So please bear with me. Wherever necessary, just very few words, because just listening to his voice and the sound of the tambura and the echo of the words of Kabir is enough to just absorb the meaning of what he's saying. We really don't need the English words for it. Okay? आपका स्वागत है प्रहलाद जी. हाँ डाल दो. योगी राम सूरत कुमार की जय हो, और हमारी माँ को मैं प्रणाम करूं, आप सबके अंदर के जीवात्माओं को प्रणाम करूं. मैं कोई गायक नहीं हूं विशेष रूप से, जैसा आपके मन में होगा कि बहुत बड़े गायक हैं, ऐसा कुछ है. और हम चाहते हैं कि ऐसे संतों की जो वाणी है, उनका इशारा है, वो पूरे जनमानस के बीच में जाए. और वो है जो उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जो एहसास किया, उनका एहसास आप और हम सब के जीवन में भी संभव है. सवाल केवल ये है कि उस स्तर से हमारी यात्रा अंतर की भी हो. योगी वो है जो अपने अंतर के शब्द और सूरत से मिलाप कर ले, उसके बाद में उसके अंतर से जो शब्द निकलता है
वो नाम होता है, वो धुन होता है, वो शब्द होता है। हम आपके बीच में, ये मेरी खुशकिस्मती कि आज आप सबका दीदार, आप सबके दर्शन, काफ़ी साल हो गया, 2-3 साल, 3 साल हो गए थे माँ के दर्शन किए। तो हमने सोचा था कि हम नटराजन जी के यहाँ पर थे बेंगलोर में, और उसके बाद में हमारी ऐसी इच्छा हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम भी तिरुवण्णामलाई जाना चाहते हैं। तो आप सबके दर्शन हो गए। हमारे लिए आप सभी योगी राम सूरत कुमार हैं या रमन महर्षि हैं। संतों ने जो गुरु तत्व के बारे में कहा है वो गुरु के शरण से ही संभव है, उसका एहसास। कबीर का एक पद है, गुरु शरण में रहना रे मन, तो गुरु शरण में रहना। हमारा मन उस नाम में कैसे लगा रहे, इसी वजह से यहाँ पर नाम का संकीर्तन हमेशा होता है। योगी राम सूरत कुमार जी, योगी राम सूरत कुमार, इस तरह से। तो ये एक चैंटिंग, एक तरह का उस नाम का स्मरण है जो निरंतर चलते रहना चाहिए। बोल करके अभिव्यक्ति है, परंतु आप और हम सब के अंदर वो निरंतर भी चलता है, ये भी आप सब जानते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर वो गुरु तत्व जिनका एहसास हमें ऐसे साधकों से मिलता है, उससे शुरुआत करें। He wants to start the evening with a song about the Guru Tattva. So it is a Kabir bhajan, and he says that we all should stay at the feet of the Guru and experience, not only imbibe the principles or the values of a Guru, but also follow them in our own lives. ध्यान मूलम गुरुमूर्ति और पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्यों? वाय? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, न गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे कोई सत्य को, और गुरु बिन मिटे न दोष। इसीलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। और कितना? ये जी 7 दीप 9 खंड में, न गुरु से बड़ा नहीं कोई। ये जी करता तो कछु कर न सके, पर गुरु करे सो हो। पर ये तब होगा जब गुरु की अटपटी बात को हम झटपट लख लें, परख लें, देख लें, एहसास कर लें। इसलिए कबीर कहते हैं, गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। अरे जो जन झटपट लखी लहे, वह की खटपट ही मिट जाए। हमारी अटपट और खटपट तब मिटेगी जब हम लख लें, देख लें, एक्सपीरियंस कर लें, एहसास कर लें। इसलिए ये इस तरह का जो है वो नहीं, एहसास का विषय है। और ये तब होगा जब हम गुरु की शरण में रहें। और गुरु, आप सब गुरु हैं। कबीर कहते हैं कि या घट भीतर 3 लोक है, या ही में है करतारा। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, या ही में गुरु हमारा। इस पिंड के मार्फत ही हम वो सदगुरु का, वो राम का, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का, वो वाहिगुरु का, वो योगी सूरत राम कुमार का एहसास, प्रत्यक्ष अनुभूति अपने अंतर में कर सकते हैं।
सवाल केवल ये कि हमारी रूह, हमारी श्वास की जो गति है वो अर्ध के स्थान पर ऊर्ध्व हो जाए। और ये सब योगी का मतलब होता है, योगी का मतलब होता है योग के मार्फत हम अपनी ब्रीथ या श्वास को किस तरह से चल रही है और उसको ऊर्ध्व गति में कैसे लाएं। और ये तब होगा जब गुरु जी के चरणों में घुले, तब ये तब होगा जब हम गुरु जी की सेण को, उनके इशारों को अपने जीवन में घटित करें तब। और इसीलिए गुरु की शरण की बात करते हैं। तो मैं पहले गुरु के शरण के लिए कहाँ जाएं? कबीर इस पद में ये कहते हैं, अरे गुरु शरण मेरे नार मंतु, गुरु शरण मेरे नार। अरे गुरु शरण मेरे नार मंतु, गुरु शरण मेरे नार। क्या होगा? अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। ये जी पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नाम। रे किसके लिए कहाँ जाए? अरे पांच तत्व की बनी थारी काया, वहीं निगह कर लेना। अरे पांच तत्व की बनी थारी काया, वहीं निगह कर लेना। यहाँ निगह क्यों करें? क्योंकि वो जो छठा तत्व है, जिसको संतों ने आत्म तत्व कहा, जिसको संतों ने ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, जो भी कुछ आप कहते हैं वो कहा, वो छठा तत्व इधर है, सबके अंतर में है। इन पांच तत्व के जो पुतला है, शरीर है, इसी में वो छठा तत्व है जिसकी वजह से हम सब काम कर सकते हैं। इसीलिए कहा है, अरे पांच तत्व की बनी थारी काया, वहीं निगह कर लेना। अरे पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे। ये जीवा को गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नाम। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। ये जिस पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नाम। छठे तत्व के एहसास करवाने के लिए बहुत सारी जगहें हैं और सब अपने अपने तौर तरीके से छठे तत्व का एहसास करने की बात करते हैं, परंतु उससे कितना होता है कि नहीं होता है ये तो आप जाने। इसलिए कहा है, अरे घना गुरु विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना। घना गुरु विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना। अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता। यदि पार ब्रह्म मेरे नारे मन तू, गुरु शरण मेरे नाम। पार ब्रह्म क्यों कहा? ब्रह्म और पार ब्रह्म
सकल जग ब्रह्म है, ऐसा कहता है। ब्रह्ममय सृष्टि है, परंतु ब्रह्ममय सृष्टि से ऊपर हमारी सुरती कब टिके, ताकि वो पार ब्रह्म हो जाए। इसलिए कहा है, हरे तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। हरे हरे अरे जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, ये जिस काट धर देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे ना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। ये जिस पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे ना। और जो इंसान इस तरह से गुरु के प्रति समर्पित होता है, तन मन धन, अब यहाँ पर तन मन धन की बात क्यों कही होगी ये तो आप जाने, परंतु वो मोती चुभता है जो गुरु के प्रति इस तरह से समर्पित होता है। इसलिए कहा है, अरे मोती चुभना रेणा संबंध में, लहर दरिया पी लेना। अरे मोती चुभना रेणा संबंध में, लहर दरिया पी लेना। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अरे जीवन मुक्त होई रहना रे मन तू, गुरु शरण मेरे ना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार गुरु मिलिया। ये जिस पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे ना। हे जी गुरु शरण मेरे ना। ओहो गुरु शरण मेरे ना रे ना। गुरु की शरण की बात यहाँ पर कही, मोती चुगना रहना समन में, और लहर दरियाव के लेना, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, जीवत मुक्त हो रहना। जीते जी ये मुक्ति है। अब मोती चुगने का मतलब वही है, उस नाम का संकीर्तन हम करते करते उसमें हो जाए, राममय हो जाए। और ये तब होगा जब हमारी सुरती, इसीलिए यहाँ पर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सुरत कहा, राम के अंदर सुरत को लगाना, और वो राम जो सबके अंदर मौजूद है उसके अंदर हमारी सुरती टिकती है कि नहीं। और जिस दिन राम के अंदर सुरत टिक जाए तो फिर आप और हम सब राम सूरत कुमार हो जाएंगे। और इसीलिए माँ कहती है कि निरंतर ये योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार करते रहें तो कभी कभी वो सुरती जो बाहर है वो अंतर में उसकी यात्रा शुरू हो करके हम उस चीज़ को, उस राम को जान पाएंगे। वो राम वो तत्व है जो पूरी कायनात को सृजित करता है। पर दुर्भाग्य कहिएगा कि हम अभी राम की बात करते हैं तो हिंदू, और अल्लाह की बात करते हैं तो मुसलमान हो जाता है, जबकि हर इंसान की आह में जो मौजूद है वो अल्लाह है। हर इंसान के अंदर रमने वाला जो है वो राम है। इसीलिए रमण महर्षि का नाम मुझे पता नहीं है, परंतु उनका नाम रमण महर्षि नहीं था। जब उनको इस चीज़ का बोध हुआ तो उनके अंदर कहा कि वो राम जो सबके अंदर रमण करता है, इसलिए वो महर्षि है। जो अपने और इन सब के अंदर जो राम रम रहा है, उस राम का एहसास जब इंसान कर लेता है तो वहाँ पर जितनी भी ड्वेलिटी है खत्म हो जाएगी।
हिंदू मुसलमान तो ठीक है, परंतु स्त्री पुरुष, गोरा काला, ऊंचा नीचा, ये सब खत्म। इसलिए इस राम के बारे में सबने कहा, और इसी राम के बारे में कबीर को देख लें, गुरु नानक को देख लें, बुल्ले शाह को देख लें, शेख फरीद को देख लें। वो कहते हैं कि मुझ में बोलता वो मैं नहीं, आप और हम सब के अंदर जो बोलता है ना, वो ये पिंड नहीं है, वो चेतन में सत्ता है। और वो चेतन में सत्ता जो सबके लिए एक है, वो स्त्री या पुरुष नहीं है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं है, वो कुमार या युवा या वृद्ध नहीं है, वो एक रस है, एक समान है। और इसीलिए एक पद मुझे याद आ गया, गुरु नानक साहब का पद है कि राम का एहसास योगी राम सूरत कुमार जी ने कैसे किया, और यही एहसास गुरु नानक साहब ने कैसे किया। वो कहते हैं कि वो जो सब में राम मौजूद है, उसका एहसास मुझे कैसे हुआ, यानी गुरु नानक साहब को कैसे हुआ, या कबीर को कैसे हुआ, या योगी राम सूरत कुमार जी को कैसे हुआ। मैं वो पद सुना देता हूँ। रग रग में बोले राम जी, और रोम रोम ररंकार, सहजे ही धुन होते, और सोई सुमिरन सा। सहज रूप से सबके अंदर, रोम रोम के अंदर वो धुन हो रही है, और जो इंसान उस धुन को सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा मर्मी है, वो सच्चा भेदी है। और इसीलिए आपने सुना होगा, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता, तो बाहर सुने तो क्या हुआ। बाहर इसलिए सुनाया जाता है कि बाहर को सुन करके हम अपने अंतर में भी उस नाद को, उस अनहद को, उस अनस्ट्रक साउंड, हाउ वी विल ईयर इन अवर बॉडी, हम अपने इस शरीर में उसको कैसे सुने। ये मैं बजा रहा हूं तो आवाज आ रही है, बिना बजाया आवाज होना चाहिए, तब कहीं बात बने। और ये तब होता है जब उस राम को हम अपने अंतर में देख लें, उस राम को। वो राम कोई आकार नहीं है, राम तो निराकार है, आप सब जानते हैं। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, ये भी आप सब जानते हैं। इस वजह से गुरु नानक साहब का पद मैं पहले सुना दूं, फिर बाद में बात करेंगे। ये जी उत्तम नाम अनाम है, उत्तम नाम अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है। उत्तम नाम अनाम है, और सोहम है सुखसार, जिस सुमरे बहुजन तरे रे रे, और भव से उतरे पार। नाम नहीं है, उस परमात्मा का नाम नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये हमारे लाड प्यार में नाम रखते हैं। नाम कहूं तो नाम निवा का, और नाम धरो तो काल निता का। इसलिए बताइए नाम क्या हो सकता है। आप और हम सबका कुछ न कुछ नाम है, और नाम हम केवल इस पिंड को कह रहे हैं, परंतु पिंड फना हो जाएगी, पिंड समाप्त हो जाएगा, परंतु इस पिंड को चलाने वाला कभी फना नहीं होगा, कभी उसका नाश नहीं होगा। वो है हमारा नाम, और वो आपका जो नाम है वो भी वही नाम है, परमात्मा का ही नाम है। इसलिए वो कहते हैं, ऐज सब गट मोरा साइया, और सोनी से जन को, अरे बलियारी उना घट की, ऊर्जा घट पर घट हो। वो घट महान है जिसके अंदर वो प्रस्फुटित होकर के सबको एक शांति,
सबको एक इशारा, सबको एक उनके जलन, उनकी तपन, उनकी अगन को बुझाता है। इसलिए कहा है अरे सकल हंस में राम विराजे, ये जी राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ, हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। अरे सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। हरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ हाँ, हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। इसको कैसे परखें, इसको कैसे एहसास करें, कहाँ से करें, और सब किस तरह से कर सकते हैं। हर इंसान इसका एहसास कर सकता है। कैसे? अरे नाभि कमल से परख लेना, यदि हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना। यदि हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फिरे मणि। क्या होता है? अरे अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजें हुई। हाँ हाँ, अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजें हुई। हर सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हो हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, हर इंसान अपनी नाभि से जो श्वास उठती है, उसके मार्फत उस राम का एहसास कर सकते हैं, बाहर नहीं। हे हाजिर कोई दूर बतावे, और दूर की बात निराशी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु। क्या? इसलिए वो कहते हैं कि दूर की बात तो निराशी है, तेरे अंतर में है, तू यहाँ देख। और इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि तू तेरी नाभि से जो श्वास ऊर्ध्व और अर्ध आती है और जाती है, नाक तो केवल उसका द्वार है, पर श्वास तो उठती है नाभि से। और नाभि वो है जो हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ आवर बॉडी, ये मध्य बिंदु है। और जब इंसान इस पृथ्वी के, इस पूरी दुनिया का जो ये पृथ्वी जिसके ऊपर अपन बैठे हैं, उसके सेंटर पॉइंट पर यदि इंसान चला जाए तो उसका हाल कैसा होता है? हमारा वजन, हमारा ईगो, हमारा घमंड खत्म हो जाता है। ऐसे उड़ेंगे। जब तक हम हल्कापन नहीं होंगे ना, तब तक कुछ होना नहीं है। और इसीलिए संतों ने कहा कि जो तुम आओ हल्का होकर, जो तुम आओ हल्का होकर, तजो मान का भारा, और ऐसी रहने रहो मेरे अवधू, भव से उतरूंगा पारा। इसलिए यहाँ से नाभि से हर इंसान
उस राम का, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का, उस योगी सूरत राम कुमार का, या रमन महर्षि का, या गुरु कबीर का, या गुरु नानक का एहसास कर सकता है इन और बॉडी, आप अपने इस पिंड के अंदर। परंतु कब? जब हम गुणों के अवधार में बंधे रहेंगे तब तक मुश्किल है। जब तक इंसान 5 तत्व और 3 गुणों की हदों में बंधा रहेगा तब तक नहीं कर पाएगा, चाहे कितना ही कुछ करता रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी गुण हैं वो इंसान को फंसाने का काम करते हैं, इंसान को लड़ाने का काम करते हैं, इंसान को ऊंचा नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम, वो जहां कबीर सा घर किया वहां गोरख दत्त नाराम, ऐसा कहा। इसलिए कहा है कि सबका तेज 3 गुणों के ऊपर है। और ये विचार करिए, ये 5 तत्व और 3 गुणों की हदें इस पिंड में, आप और हमारे इस शरीर में कहाँ पर है, ये विचारने विषय है, एहसास का विषय है। इसीलिए गुरु नानक साहब आगे यूं कहते हैं, यदि 5 तत्व पर जो जड़े, 3 गुण पर तेजे हमारा। यदि 5 तत्व पर जो जड़े, 5 तत्व पर जो जड़े, अरे जिनका उजाला 14 लोक में सुरदूर आकाश चढ़े, जिनका उजाला 14 लोक में सुरदूर आकाश चढ़े। हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जो तवासा, राम को सुनना दूजा नहीं। ओ हर घट में है जो तवासा, राम को सुनना दूजा नहीं। इन हीरे और जवाहरत को इंसान इस पंच भौतिक शरीर रूपी पिंड में देख सकता है, एहसास कर सकता है, प्रत्यक्षानुभूति कर सकता है। इसीलिए कहा है, अरे हीरा जो मोती लाले जवाहरत, यदि प्रेम पदारत पर को नहीं, हीरा जो मोती लाले जवाहरत, यदि प्रेम पदारत पर को नहीं, प्रेम पदारत पर को नहीं। अरे साथा मोती सुमर लेना, राम धन से मारी ढोरे लगी। ओ साथा मोती सुमर लेना, राम धन से मारी ढोरे लगी। जो उनको देखता है, जो उनको हेरता है, जो उनको लगता है, परखता है, वो है सच्चा गुरुमुख, वो है सच्चा गुरु की सेवा करने वाला। इसलिए कहा है, अरे गुरुजन हो तो हेरी लो घट में, हेरना देखना। अरे हरिजन हो तो हेरी लो घट में, यदि बाहर शहर में भटको मती, हरिजन हो तो हेरी लो घट में। यदि बाहर शहर में भटको मती, बाहर शहर में भटको मती। अरे गुरु प्रताप नानक सका वरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। हाँ गुरु प्रताप नानक सका वरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। भाई भीतर बोले कोई दूजो नहीं, हाँ भीतर बोले कोई दूजो नहीं। इस तरह से गुरु नानक साहब कहते हैं कि आप और हम सबके अंदर जो बोल रहा है वो राम सूरत कुमार है,
वो रमण महर्षि है, वो कबीर है, वो गुरु नानक है, वो बुल्ले शाह है, वो शेख फरीद है, या वो राम है, या वो अल्लाह है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि इस बोलते को याद कर, इस बोलते को याद कर जिसका इलाही नूर है, जिसने इस पिंड और प्राण को रचिया, सोई तो यहां हाल हजूर है, सबके अंदर मौजूद है। गज राजा तो द्वारे झूलता, वही राजा जहूर है, और उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं तो गाफिल क्रूर है। कहे कबीर घट चेत ले, तेरे में तेरा नूर है, और नूर पर जहूर दरसे तो साहिब ही भरपूर है। वो साहिब प्रत्येक जीव के अंदर पूर्ण रूप से, समान रूप से मौजूद है। परंतु हम सोचते कि ये ऐसी ऊंची जगहों पर माँ ने बिठा करके हमको थोड़ा हमारे अंदर घमंड आ जाता है, मैं ज़्यादा, या ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचे पानी ना टिके ने नीचे ही ठहराए, और जो नर ऊंचा हो रिया भी प्यासा ही मर जाए। तो इसलिए जो बन गए ना, अभी माँ कह रही थी, एक कबीर की साखी है, आप सबको याद होगी, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ ने जैसा पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं न फल लागे तिदूर। बहुत बड़े बड़े बन गए, परंतु यदि एक पथिक को छां नहीं है तो बताओ किस काम का है। उसके फल भी बड़े दूर लगते हैं, काटे नहीं सकते, खा नहीं सकते। तो इसलिए हम उस गुरु तत्व का जो सबके अंदर मौजूद है, जिसको नाम के बारे में सब ने कहा, नाम लिया जिन सब लिया, और सब शास्त्रन को भेद, बिना नाम नरके गया, बड़े गुणी चारों वेद। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हमारे नटराजन जी को बहुत याद है। 4 वेद भी याद है, 6 शास्त्र भी याद है, पता नहीं कितने उपनिषद याद है इनको। जो कोरोना के समय पर ऑनलाइन कार्यक्रम थे, जब इनसे परिचय हुआ, उस समय पर भारत में ये नहीं थे, ये यूके में थे, और उस समय पर काफ़ी चर्चाएं हुई। उस समय पर ये, मुझे तो आता नहीं है ये करने का, ये दीपा जी काम कर रही थी ऑनलाइन का कैसे होता है। तो उस समय पर जो जो लोग पूरे दुनिया से जुड़े हुए थे, तो उसमें एक जीवात्मा ये भी थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खूब पढ़ना लिखना बुरी बात नहीं है, वेद एक भेद है। वेद में जो चीज़ लिखा है वो एक भेद है, उसको हम अपने ऊपर कैसे एहसास करें। कबीर एक जगह पर कहते हैं कि वेद हमारा भेद है, और क्या करेगा पूरा, और कर्म गथा के कोड़ में ने बैठा पंडित हजूरा। यदि हम कर्मों की अवधारणाओं में बंद करके वहीं पर टिके रहे, तो उसके भेद को, उसके मर्म को हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए इसके लिए ये करना पड़ेगा कि पहले हमने जो पर्दे चढ़ा रखे हैं, उन पर्दों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि जमाने भर के पर्दे हैं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ये भी पर्दा है। हम ये बहुत अच्छा बजाते, ये भी पर्दा है। या मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत ऊंची जगहों पर पद, ये सब ये पर्दे हैं जो इंसान को उस मूल रूप से टिकने में अवरोध है। और वो पर्दे आँख के ऊपर पड़ गए, इसलिए दिखना बंद हो गया। हमारी आंखें देख रही, परंतु हम अंधे हैं सब। एक भजन है कबीर का, कहीं समझाऊं सब जग अंधा। हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सब दिख रहा है हमको कि ऐसा वैसा ऐसा, परंतु हमने जिस चीज को देखना है वो देख ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि घूंघट के पट खोल, अरे तुम्हें पीव मिलेंगे। वो पीव, वो परमात्मा, वो पति, वो सुप्रीम पावर सबके अंदर है। उसको हम तब देख पाएंगे जब हमारी आँख के ऊपर के पर्दे निकाल दें। और वो पर्दे काहे के, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये बेटी बैठी है, ये लड़की बैठी है, वो लड़का बैठा है, इन्होंने हरा कमीज पहना है, उन्होंने लाल पहना है, ये ऊंचे हैं, वो ये पर्दे हैं। तो ये घूंघट के पर्दे जब तक नहीं खुले तब तक गड़बड़। यहाँ तक कि
गुरु के पास आने के बाद में फिर गुरु और शिष्य दो नहीं होते, एक हो जाते हैं। हम माँ के साथ मिल लिए या आप और हम सब राम सूरत कुमार जी से मिल लिए, तो अब राम सूरत कुमार जी में और आप में कोई फर्क नहीं है। और यदि फर्क है तो अभी हम उनसे मिले नहीं है। ये अवस्था हमारे जीवन की होना चाहिए। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तो ये भी मिलेंगे। और इसका एहसास बिना घट के नहीं हो सकता है। जब तक शरीर है तो ही हम इसको देख सकते हैं, यदि शरीर नहीं है तो हम इसका एहसास नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा है ऐसे घट बिन कब हो न देखिए। घट बिन, बिना घट के हम कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसे घट बिन कब हो न देखिए और राम रहा भरपूर। जिन जाना तिन निकट है रे और दूर कहाँ ते दूर। घट बिन कब हो न देखिए, बिना घट के हम उसको नहीं देख पाएंगे। किसको? जो राम रहा भरपूर, वो राम जो सबके अंदर भरपूर स्थिति में है। जिन्होंने जान लिया उन्होंने कहा है कि वो मेरे पास है, और जिन्होंने कहा कि दूर है तो उनसे दूर ही रहा। इसलिए ऐज कबीर जग के जोहरी और घट की आंखें खोल। ऐज तुला समार विवेक की और तोलो शब्द रसो। और तोलो शब्द रसार। जब तक इंसान के विवेक की गांठ या विवेक की तराजू के ऊपर तोलेगा नहीं, तब तक हम भ्रम में भटकते रहेंगे। और विवेक जो है वो सच्चा गुरु है। कबीर कहते हैं कि कोई शब्द विवेकी पारखी, वो मेरे सिर का सिरताज है। और विवेक वो होता है, हमने किताब को पढ़ लिया, पढ़ने वाला बहुत ज्ञानी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। पढ़ने वाला तोता रटन हो सकता है। तोता वेलकम बोलता है, कमॉन बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। वो ये नहीं जानता कि गुड मॉर्निंग क्या होता है और राम राम क्या होता है। जिस दिन वो राम को देख लेगा उस दिन वो राम नाम बोलना ही बंद कर देगा। इसलिए घूंघट के पट खोलें। कैसे? घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वो साईं बसत है। घट घट में वो साईं बसत है। कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेगी। कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेगी। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेगी। तो किस बात का घमंड कर रहा है? किस शरीर का घमंड कर रहा है? किस धन दौलत का घमंड कर रहा है? ये तो फना हो जाएगा। इसलिए कहा है
धन जो बन का गर्वन कीजे, धन जो बन का गर्वन कीजे, झूठा पच रंग चोल रे तो भी मिलेंगे, झूठा पच रंग चोल रे तो भी मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो भी मिलेंगे। हमें शरीर का भी बहुत घमंड है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम किसी को मार सकते हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ये जबकि पचरंग 5 तत्वों से मिला हुआ जो ये पिंड है ये भी फना हो जाएगा, सब जानते हैं। 5 तत्व का पुतला और मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़ते बिसर गया सब थाम। हमारे अंदर कोई एक ऐसी कला है जो यदि इसमें से निकल गई, इंसान तुरंत कहते चलो चलो जल्दी करो, या ना? जब तक इस पिंड में वो शिव है, जब तक इस पिंड के अंदर वो सदगुरु है, जब तक इस पिंड के अंदर वो राम है रमण करने वाला, तब तक पिंड से कितना लगाव है, हम उसको कितना सजाते हैं, संवारते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और शिव में केवल ई की मात्रा है, ई की मात्रा, उसको अलग कर दो, क्या बचा? शव। इसमें इस पिंड में ईश्वर, ये जो स्वर है ना, ये स्वर चलना बंद हो जाए या स्वर निकल जाए, उसके बाद ये शव बन जाता है, आप सब जानते हैं। और शव को कोई भी घर में नहीं रखता, शव को तुरंत कहते चलो चलो जल्दी करो, जबकि उसके पहले जब तक इसमें वो ईश्वर है, जब तक शिव है, तब तक उसको कितना सजाते हैं, संवारते हैं, हिफाजत करते हैं, उसका लाड़ प्यार करते हैं। और केवल ये स्वर निकला, माटी में माटी मिला और मिला पवन में पवन, और मैं तुम्हें पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन? ईश्वर कभी मरता नहीं, ईश्वर छोटा बड़ा बूढ़ा बालक ऐसा नहीं है, वो हमेशा एक रस है। परंतु हमने मरना कह दिया, क्या मरता है? वो तो कभी मरता ही नहीं। देह मरे जीव अमर है, और पार ब्रह्म है सोई, और अज्ञानी भटकत फिरे लखे सुज्ञानी हो। इसलिए वो कहते हैं कि तू इसका क्या, इस पचरंग चोल का क्या घमंड कर रहा है? नहीं, इसीलिए वो आगे कहते हैं, सुन महल में दिवला बरेले, सुन महल में दिवला बरेले, आशा से मत डोल रे तो दीप मिलेंगे, आशा से मत डोल रे दीप मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो दीप मिलेंगे। कहाँ दिया जलाए? शून्य महल में। और आप और हम सबका शून्य महल कहाँ पर है, आप सब जानते हैं। शून्य शिखर पर घर किया, ये शून्य शिखर, शून्य शिखर पर घर किया न बाजे अनहद दूर, शब्द अनाथ होत है, सुरती लगी तहाँ मूर। मेरी सुरती इस शून्य शिखर पर लगी, ये है। और वहां दिया जलता है, जैसे अभी दिया आरती कर रहे थे और यूं कर रहे थे। हर जगह पर मंदिर में इस तरह से नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन मंदिरों में भी हमेशा ऐसी आरती होती है। यहाँ तो सुबह शाम या दोपहर को करते होंगे, परंतु इन मंदिरों में हमेशा होता है ऐसा।
हमेशा तो दिया जलता है और हमेशा यूं होता है, पर हमने कभी इधर देखा, इधर कभी एहसास किया, इधर कभी ऐसी आवाज सुनी, या कभी ऐसी आवाज सुनी, या कभी ऐसी आवाज सुनी? नहीं सुनी। हम बाहर ही कर रहे हैं। इसलिए कहा है कि खलक मिला खाली हुआ, खलक मिला खाली हुआ और बहुत किया बकवाद, और बांझ हिलावे पालना नेता में कौन सुवाद। खाली बच्चे के पलने को यदि इंसान जिंदगी भर हिलाता रहे, वो बच्चे के सुख को नहीं जान पाएगा, आप सब जानते हैं। इसलिए इसके अंदर जो बच्चा है, इसके अंदर जो सदगुरु है, इसके अंदर जो अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु है, उसका ऐसा जब तक इधर नहीं करेंगे तब तक झूठा है, धोखा है, छल है, कपट है, भरे है। और ये जितनी भी मूर्तियां हैं, ये इसलिए है कि वहां सुरती टिका करके वो मूर्ति हमारे अंदर में आ जाए, बस फिर आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, ऐसा संतों ने कहा। इसलिए इस महल में दिया जलाओ, इस महल में उस नाद को सुनो, तब कहीं बात बनेगी। और इसीलिए आखिर में सदगुरु कबीर कहते हैं, घट घट में वो रमे रे निरंतर, घट घट में वो रमे निरंतर, पिया पायो है अनमोल रे तो पीव मिलेंगे, पिया पायो अनमोल रे तो पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। अंतिम में कबीर कहते हैं कि सच्ची आनंद की अनुभूति कब होगी? जब उस अनहद से हम वाकिफ हो जाएं, जब उस अनहद को हम अपने अंतर में सुनने लग जाएं, तब। इसीलिए आखिर में कहा है, हाँ कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, हाँ बाजत अनहद ढोल रे तो पीव मिलेंगे, बाजत अनहद ढोल रे तो पीव मिलेंगे। हाँ घूंघट के पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। कबीर कहते हैं कि तेरे घूंघट के पट खोल, तेरा पीव, तेरा परमात्मा, तेरा ईश्वर, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा यार, तेरा कसम तेरे अंतर में है। और उस वो कब होगा, उस आनंद की अनुभूति कब होगी? जब तू इस पंच तत्व के पिंजरे में उस अनहद नाद का एहसास करेगा तब। और इसीलिए अनहद के बारे में केवल कबीर ने या गुरु नानक साहब ने या शेख फरीद ने या जितने भी संत उन्होंने नहीं, सबने कहा। ठीक है, वो कान में यूं कह रही है कि बस एक भजन और हो सकता है, तो हम एक भजन और सुना देते हैं। वैसे तो क्या है, आप तो सब साधक लोग हैं, पर हमारी केवल यही गुजारिश है कि आप और हम सब वो धुन को सुने जो हमेशा होती है। नहीं, इसलिए अच्छा, सूचना है कि आधा घंटा है। ठीक।
मैं अब चूंकि आप जैसे सभी साधकों के बीच में मैं अपने आप को पाकर के मैं धन्य हूँ कि आप सबकी जो रूहानियत है, आप सबकी जो वाइब्रेशन इधर आ रही है तो हम गा लेते हैं, अन्यथा ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी अनहद के बारे में जो बात कहा गया है तो उसके बारे में एक पद मुझे याद आ गया, मैं सुना देता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, आप सब जानते हैं, और वो है अनस्ट्रक साउंड की। और वो अनस्ट्रक साउंड या अनहद नाद, वो अनहद नाद को हम किसी मजहब या धर्म या लिंग भेद या जाति या देश या प्रदेश में नहीं बांध सकते। और जो इंसान इन हदों से ऊपर उठ गया वो इस चीज़ का एहसास हमेशा करता ही है। तो इसलिए एक पद है, ये जी खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, खेल इस ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया तो जगत की भ्रमणा सब दूर भागी। बाहर और भीतर एक आकाश होते और सुषुम्ना ढोरी तहां उल्टी लागी। कैसे एहसास होगा? पवन को पलट के शून्य में घर किया रे, पवन को पलट के शून्य में घर किया ने घर में अधर भरपूर देखा। कहें कबीर गुरुपुर की मेहर से और त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। ऐज बिन पावन का पंथ है बिन बस्ती का देश, अरे बिना पिंड का पुरुष है रे और कहें कबीर संदेश रे और कहें कबीर संदेश। हाँ लहरी अनहद उठे घट भीतर, लहरी अनहद उठे घट भीतर। फेरी रही चौफेरी वो दीवाने लागी भजन धुन के, दीवाने लागी भजन धुन के। हाँ बिना हो मूले एक झरकट जाना, पान खूट बीनते हैं ओ बिना हो मूल बीनते हैं। हाँ शाखा पात्र कछु नहीं वाको, शाखा पात्र कछु नहीं वाको। तेरी राजो तेरी वो दीवाने लागी भजन धुन के, दीवाने लागी सबद धुन के। हाँ लहरी अनहद उठे घट भीतर, लहरी अनहद उठे घट भीतर। खेली रहा तो खेली वो दीवाने लागी रे शबद धुन गे, बावरे लागी भजन धुन गेरी। पर कब लगेगी? जब कोई बाण लगे, जब कोई उल्टा बाण लगे तब। हाँ उल्टा रे बाण गगन जैला, महाधर से एक तेरी। हाँ उल्टा रे बाण गगन जैला,
महादर से एक डेरी। वहां पर क्या है? हाँ, उन्हीं होडरी में मेरा साहिब विराजे, उन्हीं होडरी में मोरे सदगुरु विराजे। वहां पर लगी लव मेरी हो दीवाने, लागी भजन धुन गए हो दीवाने, लगी रे शबद धुन गए बावरे, लागी भजन धुन गए। कैसी स्थिति है वहां पर? क्या है उन डेरी में? हाँ, उन्हीं हो डेरी में ऐसा बाजा बाजे। हाँ, बाजी रहा आठ पहरी हो, उन्हीं हो डेरी में ऐसा बाजार बाजे बाजे। बाजी रहा आठ पहरी। कैसे बाजे बजते हैं? मरदंग ताल पखावत बाजे माँ, मरदंग ताल पखावत बाजे। मुरली बाजे है घड़ी गेरी हो दीवाने, लागी भजन धुन गे बावरे, लागी भजन धुन गे। हाँ, लहरी अनहद उठे घट भीतर। हाँ, लहरी अनहद उठे घट भीतर। फैली रही चौफेरी को दीवाने, लागी भजन धुन गे बावरे, लागी भजन धुन गे। इसका बहाव, इसका रमण, इस चक्र का चलना प्रत्येक जीवात्मा में है। और कैसा है? हाँ, 900 नदियां ने ज्ञान संभाला। हाँ, पेहरा आप तेरी। हाँ, 900 नदियां ने ज्ञान संभाला। हाँ, पेहरा आप तेरी। हाँ, आस पास रत्नागर सागर हो, आस पास रत्नागर सागर। बीच में अमृत डेरी हो दीवानी, लागी रे शबद बावरे, लागी भजन। अंतिम में कबीर कहते हैं ये माला फेरने की जरूरत है। और वो माला ऐसी है जिसको हाथ में घुमाने की जरूरत नहीं। कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुखमाही, मनवा तो 24 फिरे ये सब समझ नहीं। और वो माला सबके अंदर हमेशा फिरती है, केवल उससे जुड़ने की जरूरत है। इसीलिए आखिर में कहते हैं हाँ, सदगुरु के पर ताप सुमहर लो। पाई अगम की सेरी, ओहो सदगुरु के पर ताप सुमहर लो। हाँ, कहे हो कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो।
निर्गुण माला मने तेरी हो दीवानी लागी रे शब्द गे भाव रे लागी भजन गे भाव रे लागी शब्द गे लहरी अनाज उठे घट भीतर लहरी अनाज उठे घट भीतर खेली रही चौफेरी वो दीवाने लागी भजन दीवाने लागी शब्द बारे लागी रे शब्द। इस तरह से कबीर कहते हैं कि वो निर्गुण माला हमेशा सबके अंदर घूमती है, माला हमेशा फिरती है। एक जगह पर ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, हमेशा वो माला हर इंसान के घट में निरंतर चलती है। और कबीर कहते हैं कि वो माला है श्वास की, माला है निज श्वास की और फेरेगा कोई दास और 84 भर में नहीं न कटे काल की फांस। तो इस तरह से आज हम योगी रामसूरत कुमार जी की इस पवित्र उनकी सेन उनके इशारों में हमारी माँ के छत्र छाया में आज हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे स्थान पर संतों की वाइब्रेशन का प्रवाह तो होता ही है और उसी की वजह से आप और हम सबका मिलना हुआ। मैं निश्चित रूप से यही आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आप और हम सब हमारी जो सूरत है उसका साथ शब्द के साथ जुड़ा रहे, ताकि वो योग की स्थिति से हम अभिभूत हो सकें, उस योग की स्थिति को हम जान पाएँ अपने अंतर में और हमारी अटपट और खटपट मिट जाए। इस वजह से ये ज्ञान की, ये समझ की जड़ी ऐसे संतों ने, ऐसे महापुरुषों ने आप हमको दी है। तो इसलिए एक छोटा सा भजन और सुना देता हूँ, क्योंकि ये जड़ी हमको ऐसी जगहों से मिलती है। जड़ी वो है, वो दवाई है जिसकी वजह से सब रोग करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक जड़ी देता है जिससे केवल एक ही रोग करता होगा, परंतु यहाँ पर ऐसी जड़ी है जिससे सब रोग करते हैं। और वो है ज्ञान की, वो है समझ की, वो है एहसास की जड़ी। और वो दुख या वो बीमारियां क्यों हैं, इसके बारे में भी इस पद में इस तरह का है। कबीर का पद है, इंगला पिंगला के घाट को खोज ले, इंगला पिंगला के घाट को खोज ले, ने भमर गुंजारता करत भाई, सुषमना नीरता निर्मल बहे, और तासु के नीर पिए प्यास जाई। 5 की प्यास तहा देखी पूरी भई, और 3 की ताप तहा लागे नहीं। कहे कबीर या अगम का खेल है, और गेप का चांदना देख माही। गेप का, और आप और हम सब पूरी कायनात गेप से आई, पर गेप से यहाँ आने के बाद में एब लग गई, अनेक प्रकार की दुविधाएं पैदा हो गई कि हम हिंदू है, मुसलमान है, ये लड़की है, लड़का है, ये देश का है, ये प्रदेश का है, ये गोरा है, काला है, इन्होंने काला पहना, इन्होंने हरा पहना, इन्होंने पीला पहना, ये सब ये एब है। और ये एब तब तक नहीं मिटेगी जब तक हम पलटे नहीं। कबीर कहते हैं कि गेबी आया गेब से, गेबी आया गेब से, और यहाँ लगाई एब। गेबी आया गेब से ने यहाँ लगाई एब, और उलट समाना आप में तो मिट गई सारी एब। जब हम इधर आ जाएंगे नहीं, सब एब पलट जाएगी। और एब कब तक होती है? हमने देखा, आंखों से देखा ये माइक है, आंखों से देखा ये मोबाइल है या पानी का डब्बा है, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, ये। और जब यहाँ से थोड़ा सा इधर ऊपर उठे कि एब मिटी, इसलिए ऊपर उठने का प्रयास करो। और इसीलिए कहा है कि उल्टी डोर चढ़े सतवंती, उल्टी डोर चढ़े सतवंती, हे लड़को नटको, और चढ़ गया डोर खेल सब देखा, तो मिटी गयो सब खटको। हर खटका तब मिटेगा, हर एब तब मिटेगी जब हम
उलट जाए, पलट जाए, ऊर्ध्व गति में आ जाए या यहां से ऊपर आ जाए। इसलिए कहा है ज्ञान की जड़ियां दई मेरे सतगुरु ने, ज्ञान की जड़ियां दई। वाजड़िया तुम्हारे लागे तो प्यारी रे, वाजड़िया तो घड़ी लागे लागे प्यारी, अमृत रस से भरी हो गुरा जी ने, दिन दिन ज्ञान की जड़ी। वो जड़ी सबके इस पंच भौतिक शरीर में मौजूद है, विवेक की, प्रत्यक्षानुभूति की, एहसास की। इसलिए कहा है काया नगर माही घर एक बंगलो, ताबिज कुपत धरी। काया नगर माही घर एक बंगलो रे, ताबिज कुपत धरी। वाजड़िया तुम्हारे लागे तो प्यारी रे, वाजड़िया तो घड़ी लागे लागे प्यारी, अमृत रस से भरी हो गुरा जी ने, दिन दिन ज्ञान की जड़ी। इसको खाने का काम, इसको मिटाने का काम, दुविधा में डालने का काम कौन करता है? इसके बारे में कबीर कहते हैं 5 नाग रे 25 नागणी, सूंघत तुरत मरी। 5 नाग रे 25 नागणी, सूंघत तुरत मरी। हो जी वादड़िया तुम्हारे लागे तो प्यारी रे, वादड़िया तो खड़ी लागे लागे प्यारी, अमृत रस से भरी हो गुरा हो जी ने, दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। हो जी इसमें हम सब क्यों उलझते हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति, हमारी इच्छा, हमारी ममतामयी विषयमयी स्थितियां से हम किस तरह से ग्रसित हैं,
सबको अपना अपना पता है, इसीलिए कबीर कहते हैं इनका ने भाया सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। हो दी काली ने भाया सब जग खाया रे, सतगुरु देख डरी। हो दी वाजड़िया तो माने लाग जो प्यारी रे, वाजड़िया तो घनी लग लग प्यारी, अमृत रस से भरी हो बुरा हो जी ने, दिन दिन ज्ञान की जड़ी। हो जी कहे कबीर सा सुनो भाई साधो, ले परिवार की। हो दी कहे कबीर सा सुन भाई साधो रे, ले परिवार तेरी। हो दी वागड़िया तो भाने लाग जो प्यारी रे, वागड़िया तो घनी लग लग प्यारी, अमृत रस से भरी हो राजी ने, दिन दिन ज्ञान की जरी। हो दी बोले गोगी राम सूरत कुमार की जय, सकल संत समाज की जय, आज के आनंद की जय, हमारी माता जी की जय, आप सबके जीवात्मा की जय। बस इन्हीं शब्दों बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं पुनः आप सबका बहुत हृदय से वंदन, अभिनंदन और अंतर से आपको साहिब बंदगी करता हूँ। और ये सब जो अवसर है हमारी माँ की वजह से हुआ, और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद सबको इसी तरह से मिलता रहे, और उस प्रेम और अमृत का प्रवाह आपके अंतर से होता रहे, ताकि हमारी क्षुधा हमारी कर सके साहिब बंदगी। ये ले लो, ये वो थोड़ा ऐसा है दीपा। अच्छा ठीक है। From the beginning, he kept saying, please sit down here, sit here, sit here. Now it's happening. So, we all had a deep dive into the prasad of Kabir,
So Kabirji आए हैं इधर. I think, I've been calling out to Kabir past 3 days, and suddenly he landed here today unexpectedly. And here we are all enjoying the Amrita of Kabir. Though of course we didn't understand in places, it's very deep and the language also is difficult to follow. But on the whole, we felt, we all had, at least I had, a deep anubhav. And I am very, very grateful to Prahlad for this feast of Kabir songs. How can we ever thank these people for such nectarine words and songs, and the music, divine music that went with it? All the same, on behalf of the ashram, we would like to offer some prasad of Yogi Ram Surat Kumar, which I hope Kabirji, I keep calling him Kabirji now, doesn't refuse. I request him to kindly accept it, because it's a great blessing from Bhagwan, Shri Yogi Ram Surat Kumar. Way back, several years before, in Tirukovilur Mutt, Swami Jnanananda, he was living in his sharir. At that time, one day, in front of a huge assemblage, he was proclaiming something. Yogi Ram Surat Kumar Bhagwan used to go there, but he was very shy, he wouldn't come forward or anything. He joined a big crowd there and he was standing at the back with the crowd. Suddenly Jnanananda Giri Swami clapped his hand and asked those people gathered, "Have you all seen Kabir?" Everybody thought that he was going to refer to himself as Kabir, that he was Kabir reincarnated. But suddenly, Jnanananda Swami, please see, here is Shri Kabirji, and here we have one more right in front. And as I said, we had such a deep, this is Masi Maham. You know, this month is Masi Maham. So we all had this feeling that Masi Maham Snan is over. You know what, I'll explain to you later. It's a experience, a beautiful evening, absolutely divine, and we are being deeply touched by this. And all thanks Kabir Prahlad ji to accept the prasad from Shri Kabir ji.